مرکزی وزیر صحت نے اس سلسلے میں تمام ڈی ایم ہیلتھ ٹیم کے عہدیداروں اور دیگر انتظامی عہدیداروں کو جاری کی ہدایت۔ دہلی میں 3 مقامات پر ہوگا ڈرائی ویکسین کا رن، اس کے لیے 3 اضلاع کے 3 مراکز کا انتخاب۔ یو پی میں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کورونا ویکسین کا ہوگا ڈرائی رن۔ یہ ڈرائی رن کیا جائے گا روزانہ 100 ویکسینیشن کے مقصد کے لیے۔ کورونا ویکسین کو لے کر سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی ہوئی اہم میٹنگ۔ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی کورونا ویکسین کو ویشیلڈ کو ہنگامی منظوری۔ ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 17,080 نئے معاملے، اس کے ساتھ ہی کورونا کی تعداد 1,03,03,000 سے پار۔ مہاراشٹر میں کورونا کے 3,524 نئے معاملے، 59 کورونا مریضوں کی ہوئی موت۔ ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد 19,35,000 سے زیادہ۔ راجستھان میں کورونا کی رفتار ہو رہی ہے کم، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 609 نئے کیس آئے سامنے، 4 افراد کی موت۔ ریاست میں متاثرہ افراد کی تعداد 3,08,000 سے زیادہ۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کا 38واں دن۔ کسان لیڈران نے کہا 4 جنوری کو حل نہ نکلنے کی صورت میں احتجاج میں لائی جائے گی شدت۔ اڈیشہ کے IIM سنبل پور کے مستقل کیمپس کا آج وزیر اعظم رکھیں گے سنگ بنیاد، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب کا انعقاد۔ آسام میں 1 جنوری سے کھل گئے اسکول، تاہم ایک بھی طالب علم نہیں پہنچا۔ اسکولوں میں کلاسز بھی کی گئیں شروع۔ کولکتہ میں بی جے پی لیڈر شوبھیندو ادھیکاری کا دعویٰ، مغربی بنگال میں بنے گی بی جے پی حکومت۔ کہا پی ایم مودی کے نظریے والی حکومت ریاست میں لائے گی ترقی۔ دہلی کے راشٹرپتی بھون میوزیم کو عوام کے لیے کھولا جائے گا 5 جنوری سے۔ پیر اور سرکاری چھٹی کے علاوہ ہر دن کھلے گا میوزیم۔ کورونا وبا کی وجہ سے گزشتہ سال 13 مارچ سے بند تھا میوزیم۔ امید ہے کہ ملک میں آئندہ کچھ دنوں میں کورونا ویکسین کی ٹیکہ کاری کا عمل ہو جائے گا شروع۔ اس درمیان ویکسین کے حلال اور حرام سے متعلق بحث بھی جاری۔ اس معاملے پر جماعت اسلامی ہند کی شرعیہ کونسل نے گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے کہا کہ ابھی صورتحال نہیں ہے واضح، تاہم جان بچانا زیادہ ضروری۔ کرناٹک میں تعلیم کے حوالے سے اچھی خبر، ریاست میں اسکول اور کالجز دوبارہ ہو گئے شروع۔ کورونا کی وجہ سے 9 مہینوں کے بعد کھلے تعلیمی ادارے۔ پہلے مرحلے میں 10ویں اور 12ویں جماعت کی کلاسز شروع کرنے کی دی گئی اجازت۔ بنگلورو کے فریزر ٹاؤن میں واقع حاجی سر اسماعیل سیٹھ سرکاری اردو اسکول میں حکومت کی ہدایت کے مطابق کووڈ کے خاص انتظامات۔ نئے سال کے استقبال کے ساتھ کولکتہ یونانی میڈیکل کالج اینڈ اسپتال نے اپنا احتجاج جاری رکھنے کا کیا فیصلہ۔ کالج کو سرکاری تحویل میں لیے جانے کے مطالبے پر کالج کے اساتذہ اور طلبہ بیٹھے گزشتہ 12 دنوں سے احتجاجی دھرنے پر۔ ممبئی کرائم برانچ یونٹ 8 کی ٹیم نے لاکھوں روپے کے خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ ایک شخص کو کیا گرفتار۔ ممبئی کرائم برانچ کے ڈی سی پی اکبر پٹھان کا بیان، ٹیم کو خفیہ جانکاری ملی تھی کہ باندرا ٹرمینل کے قریب ایک شخص سپلائی کرنے والا ہے ان ہتھیاروں کی۔ سینئر وکیل محمود پراچا نے دہلی پولیس پر ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا الزام لگایا۔ مختلف ملی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ایڈوکیٹ محمود پراچا کی حمایت میں بلند کی جا رہی ہیں لگاتار آوازیں بھی۔ امراوتی میں انڈین یونین مسلم لیگ اور ہم بھارت کے لوگ نامی تنظیم کی جانب سے امراوتی ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے دہلی پولیس کے خلاف زبردست احتجاج۔ محمود پراچا کے ساتھ دہلی پولیس نے جو حرکت کی اس کی سخت الفاظ میں مذمت۔ ضلع کلکٹر کو اس سلسلے میں سونپا گیا ایک میمورینڈم میں کیا گیا مطالبہ، دہلی پولیس نے جو حرکت محمود پراچا کے ساتھ کی اس کی جائے CBI جانچ۔
कसूरवार पुलिस वालों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई की। मालेगांव कॉरपोरेशन हदूद में कॉरपोरेशन और महकमा पुलिस की जानिब से बीफ फरोख्त के ताल्लुक से बरती जा रही है सख्ती। गलियों, चौक चौराहों पर बीफ फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस और कॉरपोरेशन ने शुरू की खास मुहिम। बीफ फरोशों को गैर कानूनी करार देते हुए कॉरपोरेशन ने ठेला गाड़ियां और बीफ कर लिया जब्त। मालेगांव शहर में कुरैश बिरादरी में देखी जा रही है सख्त नाराजगी और तशवीश। कुरैशी बिरादरी ने इंतजामिया के खिलाफ दिया है धरना। मुजाहिरीन ने म्युनिसिपल इंतजामिया और कमिश्नर के खिलाफ की नारेबाजी। म्युनिसिपल कमिश्नर की गैर मौजूदगी में असिस्टेंट कमिश्नर ने दिलाया यकीन जो लोग कानूनी तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं उन्हें नहीं दी जाएगी तकलीफ। कड़ाके की ठंड में भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तहरीक जारी। साल के पहले दिन सबसे ज्यादा ठंडक रही, लेकिन किसान भी डटे रहे बॉर्डर पर। तहरीक के दौरान सोग की लहर उस वक्त फैल गई जब एक किसान की ठंड से हो गई मौत। ठंड से हलाक होने वाले किसान गुलतान सिंह का ताल्लुक था बागपत जिले के खौनपुर से। गाजियाबाद मसूरी पुलिस और महकमा एक्साइज की टीम ने मशरकी पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से मशकूक गाड़ी रोककर गाड़ी से नाजायज शराब की 25 पेटियां की बरामद। लगभग 1.25 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है इनकी कीमत। पुलिस ने इस मामले में 2 स्मगलरों को भी लिया हिरासत में। तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने जानकारी दी वो नए साल के आगाज के बाद तकरीबात के मकसद से एनसीआर में ला रहे थे ये शराब। अलीगढ़ के बेहद हसास इलाके फूल चौराहे पर उस वक्त हालात बिगड़ गए जब 2 तबकों के फरीकीन लड़ गए आपस में। दुकान के आगे कूड़ा डालने को लेकर हुआ था झगड़ा। 2 तबकों के दरमियान हुए इस झगड़े से शहर में अफवाहों का बाजार भी नए साल में हो गया गर्म। यूपी में आइंदा असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतरने के ऐलान के बाद से आम आदमी पार्टी यूपी के मामलों में नजर आ रही है मुतहर्रिक। रियासत में अवाम के बुनियादी मसाइल को लेकर सूबे की योगी हुकूमत को भी घेरना कर दिया है आपने शुरू। वहीं मेरठ में आम आदमी पार्टी के मकामी लीडरान और कारकुनान ने यूपी में महंगी स्कूली तालीम, बिजली और सेहत को लेकर योगी हुकूमत पर उठाए सवाल। यूपी में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर ही पॉलिसी बनाने का किया मुतालबा। बढ़ती आबादी से मुतालिक लोगों को बेदार करते हुए मेरठ की सुरभि परिवार समाजी तंजीम ने कानून बनाने के मुतालबे को लेकर की खुसूसी मुहिम की शुरुआत। मरकजी हुकूमत से बढ़ती आबादी को काबू में करने के लिए कदम उठाने का मुतालबा। महाराष्ट्र के मारूफ अदीब प्रोफेसर मीम खे शाजली की 20वीं बरसी के मौके पर नांदेड़ में एक जलसे का इनेकाद। जलसे में उर्दू के कई नामवर अदीबों और शायरों ने की शिरकत। जलसे से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन ने मरहूम प्रोफेसर शाजली के इल्मी और अदबी कारनामों को किया याद। उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर डाली रोशनी। शिवाजी महाराज की शख्सियत पर लिखी गई उनकी किताब को तारीखी किताबों में हासिल है अहम मुकाम भी। नए साल के मौके पर अलीगढ़ में उस्मानिया हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने घंटाघर पर वाक़ चर्च के नज़दीक एक कैंप का किया इनेकाद। कैंप में पसमानदा अफराद को किया गया खाना तकसीम, ज़रूरतमंदों को दिए गए कपड़े भी। अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कायम करदा अंजुमन इस्लामिया की मौजूदा कमेटी मौलाना आज़ाद के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिशों में है मसरूफ। मौलाना आज़ाद कॉलेज की नई इमारत की तामीर के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से खरीदारी की गई है 5 एकड़ जमीन की। रांची शहर के करीब बनापड़ी नामी मुकाम पर कायम इस जमीन पर मौलाना आज़ाद कॉलेज की वसी और अरीज इमारत की कराई जाएगी तामीर। अंजुमन इस्लामिया के सदर इब्रार अहमद ने वाज़ेह किया माशरे की तालीमी तरक्की के लिए उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ तरह के कदम। महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में लॉकडाउन के बाद कॉरपोरेशन की जानिब से शहरियों पर एक और परेशानी। अब घर पट्टी और पानी पट्टी टैक्स की प्राइवेट कंपनियों को किया जाएगा सुपुर्द।
हालांकि इस फैसले के खिलाफ भिवंडी में जबरदस्त एहतजाज भी देखा जा रहा है। एनसीपी की खातून लीडर स्वाति कांबले कॉरपोरेशन के बाहर बैठ गई थी भूख हड़ताल पर। इसके बाद मेयर ने उन्हें पानी पिलाकर उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई, उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवाया। सर्दियों के अयाम में जरूरतमंदों के लिए मेरठ में मुस्लिम समाजी अफराद की तंजीम आइडियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने की एक क्लॉथ बैंक की शुरुआत। समाज के साहिब हैसियत अफराद के ताउन से गरीबों में कंबल, गद्दे और गर्म कपड़े किए गए तकसीम। नए साल के मौके पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर खास दुआ का एहतमाम। नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में ख्वाजा के दर पर पहुंचे ज़ायरीन भी आने वाले साल में बेहतर जिंदगी, खुशहाली, कामयाबी और कोरोना से निजात के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। नए साल के मौके पर ख्वाजा की मज़ार पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है, चढ़ाई जाती है चादर, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सिर्फ दुआए मजलिस का किया गया एहतमाम। टीएमसी के क़याम के मुकम्मल हुए 23 साल। तृणमूल कांग्रेस की यौम तासीस पर ममता बनर्जी का ट्वीट, कहा हम एक मुस्तहकम और एक बेहतर बंगाल के लिए करते रहेंगे काम। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमों के सरबराह से करेंगे खिताब। एमपी को खुद कफील बनाने के रोड मैप पर भी होगी बातचीत। दिल्ली में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। दिल्ली के दर्जे हरारत में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की गई रिकॉर्ड। बिहार के कैमूर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। ट्रैक्टर और बुलेरो गाड़ी में हुआ था तज़ब्ज़ुब। टीआरएफ के लिए काम करने वाले एक ओजीडब्ल्यू को बारामूला पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी अब्दुल कयूम ने जानकारी दी। इत्तला मिलने पर झेलम स्टेडियम पर नाका किया गया था कायम। तलाशी पर चारकोल से भरे थैले में 3 ग्रेनेड हुए बरामद। अवंतीपुरा पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने लश्कर तैयबा के एक ओजीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार। इसके कब्जे से कुछ हथियार और काबिले एतराज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक आकिफ अहमद तीली नामी गिरफ्तार शख्स लश्कर के कमांडर के था राब्ते में। श्रीनगर शहर के चंद इलाकों में होकरसल लावेपुरा एनकाउंटर के तनाजुर में रही हड़ताल। इस दौरान लाल चौक में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे भी रहे बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नक्लो हरकत मुतासिर। होकरसल एनकाउंटर में मारे गए 2 मिलिटेंटों का ताल्लुक था पुलवामा से। लवाहिकीन ने एलजी इंतजामिया से इस पूरे वाक़े की तहकीकात की है मांग। दोनों के वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चों का पुलिस रिकॉर्ड पे मिलिटेंसी से ताल्लुक होने का नहीं है कोई रिकॉर्ड। शोपियां में भी रही हड़ताल। कस्बा शोपियां पूरी तरह रहा बंद। ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर। उधर त्रिकोगाम शोपियां के जुबैर अहमद लोन के अहल खाना का कहना है कि उनका बेटा नहीं था, मिलिटेंसी से उसका कोई ताल्लुक। श्रीनगर एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बनाया निशाना। पार्टी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतरीन काम अंजाम दे रही हैं, इन पर किसी को नहीं उठानी चाहिए उंगली। आंध्रा नगर श्रीनगर में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब यहां 65 साला सतपाल निश्चल की लाश पहुंचाई गई आखिरी रस्मात के लिए। सतपाल को मिलिटेंटों ने गोलियां मारकर कर दिया था हलाक। हमले के वक्त सरायबाला में थे, अपनी दुकान पर वो सुना थे। अपनी पार्टी ने उन पर लग रहे इल्जामात की तरदीद की। डीडीसी चेयरमैन ओहदा हासिल करने के लिए फातेह डीडीसी आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने में गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का पार्टी पर इल्जाम। जुमेरात की रात भदरवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई आतिशबाजी में तारीखी विरसे की हैसियत रखने वाली इमारत तबाह। तमाम रिकॉर्ड्स भी पूरी तरह से जलकर राख। आग लगने की असल वजह नहीं मालूम। जम्मू में अमर सिंह क्लब में आग की वारदात हुई। रोड में बताया जाता है सिलेंडर के फटने के नतीजे में लगी आग। आतिशबाजी के नतीजे में 5 लोग बुरी तरह झुलसे।
चंदीलोरा टनमर्ग में आग की एक हौलनाक वारदात में 3 मकान, 2 मेडिकल स्टोर, 3 गाँव खाने बुरी तरह खाकस्तर। साबिक एमएलए गुलमर्ग मोहम्मद अब्बास वानी का सिक्योरिटी गार्ड रूम भी हो गया आग की नजर। वारदात में 2 लोग जख्मी। जिला पुंछ मंडी तहसील के आराई गांव में शॉर्ट सर्किट के सबब एक किराना दुकान में लगी आग। आतिशबाजी के नतीजे में लाखों का सामान जलकर खाकस्तर। इलाके में सड़क न होने की वजह से फायर इंजन नहीं पहुंच सका। जाए हादसे पर। पुल सिटी के बाहर पुलिस और एसओजी ने एलओसी पार करके आए एक नाबालिग लड़के हैदर अली को पकड़ा था। वो गलती से चलता हुआ आ गया था। इस तरफ पुलिस ने इस लड़के को नए कपड़े, जूते और जैकेट दिए खरीद कर। हैदर अली को वापस अपने घर भेजने की कोशिश जारी। 14 बरस के इस लड़के ने पुलिस और फौज की हमदर्दी पर अदा किया शुक्रिया। एलओसी पार करके हिंदुस्तानी हुदूद में आने वाली 2 लड़कियों को भी सिर्फ 36 घंटों के अंदर भेज दिया गया था वापस। बानीपुरा से तुलैल के लिए हवाई सर्विस शुरू होने पर तुलैल के लोगों ने मनाया खूब जश्न। तुलैल के बीडीसी चेयरमैन और नौ मुंतखब डीडीसी मेंबर एजाज राजा का किया गया शानदार इस्तकबाल। करगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे अब मौसम सरमा खत्म होने तक रहेगा बंद। जुजिला पास पर फिसलन और बर्फ जमा हो जाने की वजह से जान के खतरात हो गए हैं दरपेश। ऐसे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंतजामिया ने सड़क बंद कर देने का किया ऐलान। श्रीनगर से बडगाम के बीच ट्रेन चलाई गई। तजुर्बाती तौर पर ट्रायल रन के मौके पर श्रीनगर स्टेशन पर एसडीआरएम फिरोजबर, राजेश अग्रवाल, चीफ एरिया मैनेजर श्रीनगर और दीगर अफसरान रहे मौजूद। अग्रवाल ने इस मौके पर कहा, ट्रेन सर्विस की बहाली के हवाले से तबादला ख्याल जारी। श्रीनगर में मौसम की शिद्दत, पारा -6.4 डिग्री तक गिरा। दुनिया के दूसरे सर्द तरीन मुकाम द्रास में पारा -26.8 डिग्री तक जा पहुंचा। दर्जा हरारत मुसलसल मनफी रहने के सबब डल झील भी जुज़वी तौर पर मुंजमद, यानी डल झील भी जम गई है। सयाहती मुकाम पहलगाम में नए साल की आमद के मौके पर एक खास प्रोग्राम का इनेकाद। महकमा सयाहत के इश्तिराक से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में आम लोगों के साथ साथ सयाहों ने भी बड़ी तादाद में की शिरकत। मकामी फनकारों ने अपने फन का बिखेरा जादू। नए साल के इस्तकबाल में फौज के 2 सेक्टर की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने मकामी लोगों के साथ एक तकरीब का किया इत्माम। ये तकरीब अनंतनाग के लारकीपुरा में कायम 19 आरआर के हेडक्वार्टर पर मुनक़्क़िद। SKICC ने डल झील के किनारे गर्मा देने माहौल में मनाया नया साल। मशहूर झील के साहिल पर मैदान में रंगारंग प्रोग्राम किए गए पेश। लड़के लड़कियां बच्चे सभी आबिद अली की धुनों से हुए महफूज। नए साल के इस्तकबाल के सिलसिले में गुलमर्ग में सरमाई खेलों का भी किया गया आगाज। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने हरी झंडी दिखाकर इन मुकाबलों का किया इफ्तिताह। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने द्रगाम, आरमपुरा, पटनेवा, बडगाम में एक अवामी जलसे से किया खिताब। इससे पहले उन्होंने पंचायती मेंबरान और इलाके की सरकर्दा शहरियों से की थी मुलाकात। उन्होंने लोगों की मुश्किलात के बारे में हासिल की वाक़फियत। जिला कठुआ के सरहदी इलाके हीरानगर सेक्टर में देखे गए 3 मुश्तबा अफराद। मुश्तबा लोग देखे जाने के बाद गाँव वालों में दहशत का माहौल। SOG और फोर्सेस ने इलाके में चलाई तलाशी मुहिम। जम्मू एंड कश्मीर भूमि वेलफेयर सोसाइटी ने संजीवानी शारदा केंद्र जम्मू में एक बावकार तकरीब की मुनक़्क़िद। मशहूर ड्रामा नवीस और शायर श्री JK कौल बिजान की किताब की गई जारी। ये किताब नस्र और नज़्मों पर है मुश्तमिल। कठुआ में 14 नंबर वार्ड के मकीनों ने कठुआ हल्टी सड़क को बंद करके बिजली महकमे के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों का कहना लगभग 1 हफ्ते से उनके इलाके में बिजली कटौती का सिलसिला लगातार जारी। उनको पेश आ रही है दिक्कतें। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 256 नए मामले। जम्मू से 106, कश्मीर से 150 मामले, 248 मरीज सेहतियाब। यूटी में अब तक 1884 मरीजों की मौत।
سری نگر شہر میں اب ماسک لگانا ہو گیا ہے لازمی، ماسک نہ لگانے والوں کے خلاف شروع کر دی گئی ہے سخت کارروائی بھی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اہلکاروں نے ماسک نہ لگانے والوں پر عائد کیا جرمانہ بھی۔ اس بیچ ایس ایم سی کے کمشنر غضنفر علی نے سری نگر شہر کا دورہ کر ماسک مہم کے حوالے سے لیا جائزہ۔ انہوں نے لال چوک میں بھیڑ بھاڑ والے کئی علاقوں کا کیا دورہ۔ ضلع پلوامہ کی سبھی میونسپل کمیٹیوں کے لیے حال ہی میں منتخب ہوئے کاؤنسلرز کو ڈی سی پلوامہ کی سربراہی میں دی گئی تربیت۔ ترال میونسپل کمیٹی کے چیئرمین راکیش پنڈتا نے کہا، میونسپل کونسل میں عوامی نمائندوں سے ضلع پلوامہ کے شہری علاقوں میں تعمیر و ترقی کا نیا دور ہوگا شروع۔ محکمہ ریونیو کے ملازمین نے منی سیکریٹریٹ گاندربل کے احاطے میں کیا احتجاج مظاہرہ۔ یہ لوگ ناجائز تجاوزات کرنے والے ایک شخص پر کارروائی کی کر رہے تھے مانگ۔ خبریں آندھرا تلنگانہ سے بھی۔ تلنگانہ میں عوامی مقامات پر نئے سال کا جشن منانے کی نہیں دی گئی تھی اجازت۔ حیدرآباد پولیس کمشنر انجنی کمار نے پولیس کمشنر آفس بشیر باغ میں سال نو کا کیا استقبال۔ پولیس کمشنر نے نئے سال کا کیک کاٹا۔ پولیس عملے کو اور عوام کو نئے سال کی پیش کی مبارکباد۔ انہوں نے شہر میں زیرو کرائم کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا ظاہر کیا عزم۔ تلنگانہ پولیس سربراہ مہیندر ریڈی نے ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر راجن سے کی ملاقات۔ رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے گورنر کو رچاکنڈا کمشنریٹ کی سالانہ رپورٹ کی پیش۔ اس موقع پر تلنگانہ کی گورنر نے کووڈ-19 کے دوران پولیس خدمات کی خوب ستائش۔ اس موقع پر داخلہ سیکرٹری روی گپتا سمیت سائبرآباد پولیس کمشنر سجنار اور دیگر بھی رہے موجود۔ حیدرآباد پولیس نے نئے سال کے موقع پر حالت نشے میں گاڑی چلانے والے 1814 افراد پر معاملہ کیا درج۔ سائبرآباد پولیس نے 931 افراد پر حالت نشے میں گاڑی چلانے کے الزام میں معاملہ کیا درج۔ پولیس کی جانب سے نئے سال کے موقع پر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں چلائی گئی تھی مہم۔ ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر درج کیے گئے معاملے بھی۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی لیڈر اور ایم ایل سی کے کویتا نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی سے کی ملاقات۔ انہوں نے پوچارام سرینواس ریڈی کو نئے سال کی دی مبارکباد دی۔ حیدرآباد کے علاقے اپل میں ایک بے قابو لوری نے ڈی سی ایم کو ٹکر مارتے ہوئے مندر کی پارکنگ میں ہو گئی داخل۔ حادثے میں ایک بائک سوار کی موقع پر موت، دیگر 5 زخمی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق رکن پارلیمنٹ وی ہنمنت راؤ کو فون پر جان سے مارنے کی دھمکی دینے والا کانگریس کا کارکن ورنگل سے گرفتار۔ ملزم کی شناخت کمل کے طور پر۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 461 تازہ معاملے۔ ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد ہوئی 2,86,815۔ تلنگانہ میں اب تک اس مرض سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر ہو گئی ہے 2,69,456۔ ریاست میں ایکٹیو معاملے 5,815۔ گریٹر حیدرآباد کی بلدی ڈویژن لنگویجی گوڑا کے بی جے پی کارپوریٹر کی کورونا سے موت۔ رمیش گوڑا حالیہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں بی جے پی ٹکٹ پر لنگویجی گوڑا ڈویژن سے کارپوریٹر ہوئے تھے منتخب۔ ایک ہفتہ پہلے رمیش گوڑ کورونا سے متاثر۔ تیلگو سینما انڈسٹری کی مشہور اور سینئر اداکار نرسنگ یادو کا حیدرآباد کے پرائیویٹ اسپتال میں علاج کے دوران جمعرات کی رات کو ہو گیا انتقال۔ وہ 52 برس کے تھے۔ نرسنگ یادو گردے سمیت کئی دیگر بیماریوں سے تھے متاثر۔ آندھرا پردیش کے وزیر تعلیم اے سریش نے وجےواڑہ کے ابراہیم پٹم میں ریاضی کی نمائش کی افتتاح۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی نمائش سے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں میں ہوتا ہے اضافہ۔ امراوتی جے ای سی خواتین کی جانب سے ریٹائرڈ ہوئے جج جسٹس رمیش کمار کو کیا گیا الوداع۔ انہوں نے جسٹس رمیش کمار کی عدالت میں آمد پر سڑک کے دونوں جانب کھڑے ہو کر کیا استقبال۔ کرنول میں درگاہ حضرت سید شاہ کریم اللہ شاہ قادری کے احاطے میں 2021 کی آمد پر خصوصی دعائیہ اہتمام۔ اس موقع پر
सैयद नूरुल्लाह कादरी ने कहा 2021 जुमे से शुरू हो रहा है, ये साल सबके लिए रहे अच्छा। एपी के जिला करनूल में कलेक्टर जी वीरा पंडेन ने अपने कैंप ऑफिस में नए साल का किया इस्तकबाल। इस मौके पर जिला एसपी के अलावा ज्वाइंट कलेक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन और दीगर भी रहे मौजूद। करनूल जिला कलेक्टर के कैंप ऑफिस में जिला के हुक्काम और दीगर अफराद ने कलेक्टर से की मुलाकात। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उम्मीद जाहिर की कि नया साल हर एक के लिए लाएगा खुशहाली। करनूल रुकन असेंबली हफीज खान ने जिले के आला उहदेदारों और अवाम से मुलाकात करके उन्हें पेश की नए साल की मुबारकबाद। हफीज खान ने उम्मीद जताई कि नया साल हर एक के लिए लाएगा खुशहाली भी। करनूल मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पीएन जैकी ने कहा कोरोना से हो रही अमवात में देखी जा रही है कमी। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर बी श्रीनिवासलू ने कहा कि नए साल में कोविड-19 से निपटना पुलिस के लिए अहम चैलेंज, लॉ एंड ऑर्डर को मजीद बेहतर करना दूसरा बड़ा चैलेंज। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने म्यूनिसिपल के अहदेदारों के हमरा बुंद सर्कल में जेर तामीर फ्लाईओवर की तामीरी कामों का लिया जायजा। उन्होंने कनाडा कॉन्ट्रैक्टर्स से तामीर से मुताल्लिक जानकारी की हासिल। कुछ खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी। रोहित शर्मा को चेतेश्वर पुजारा की जगह पहली बार हिंदुस्तानी टेस्ट टीम का नया कप्तान किया गया नामजद। विराट कोहली के पैटर्निटी लीव पर लौटने के बाद अजिंक्य रहाणे बने थे टीम के कप्तान। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। जीन्स पैंट